یہ ایک شخص جسٹس اعجاز الحسن کو کھا گیا، جسٹس مظاہر علی نقوی کو کھا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں، ATC اور سیشن کورٹ کے 3 ججوں کے لکھے مدد کی اپیل کے خطوط کو کھا گیا، تحریک پاکستان کا بلہ کھا گیا، تحریک انصاف کو کھا گیا، 25 کروڑ عوام کا الیکشن کھا گیا، پاکستان کا آئین اور نظام انصاف کا تحفظ کھا گیا، پاکستانیوں کے انسانی حقوق کو کھا گیا، اور اب پورا عدالتی نظام کھانے کے ارادے رکھتا ہے۔ ایسا شخص کسی دوسرے ملک میں جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا، لیکن عاصم، نواز اور زرداری مافیا نے ایسے بددیانت کو عدالتی نظام پر مسلط کر دیا ہے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لان اسٹیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ عمران خان کی کال پر PTI کے کل کے راولپنڈی کے کامیاب احتجاج پر پوری قوم کو میری طرف سے مبارکباد۔ اور اس کے علاوہ آج میرے ویلاگ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے قافلے کے خلاف ریاستی جبر کا استعمال اور ان کی طرف سے آزادی کے لیے انقلاب کی جدوجہد کا آغاز کرنے کا اعلان میرے ویلاگ کا حصہ ہوگا۔ اس سے قبل میری درخواست ہے کہ آپ میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ویلاگ آپ کو ریگولر ملتے رہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے 2-3 جلسے کیے، اسپیشلی راولپنڈی کا جلسہ اور لاہور کا جلسہ، اور جن حالات میں جلسے کیے آپ کو معلوم ہے، کیونکہ جلسے شہروں میں ہوتے ہیں اور جلسوں میں NOC کم از کم 1-2 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے دیا کرتی ہے، کیونکہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ ریاستی رٹ ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو فسطائی نظام چل رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جبر کا شکار ہے تقریباً 2.5 سال سے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جبر سے مراد آپ یوں کہہ سکتے ہیں، پاکستان پورا جبر کے ماتحت ہے، اس کے انڈر سارا نظام چل رہا ہے اور فسطائیت اپنے عروج پر ہے۔ تو ان حالات میں آپ نے خود دیکھا کہ کیسے حالات میں جلسے شہر سے باہر اور مویشی منڈیوں میں بھی، اتفاق کی بات ہے کہ اسلام آباد کی مویشی منڈی جو سنگ جانی اور سنگ جانی سے آگے 2-2.5 کلومیٹر ہے، وہاں پر اجازت دی گئی، اور پھر بھی جس طرح ریسٹرین کر کے رستے بلاک کر کے کنٹینرز پورے پنڈی اسلام آباد بلکہ داخلی خارجی راستہ بند کر دیے گئے، اس طرح لاہور میں یہ سارا چیز دہرایا گیا۔ تو ایسے جبر کے موسم میں بھی یہ عشاق، پاکستان کے پروانے، پاکستان کے عشاق پھر بھی بھرپور تعداد میں نکلے اور اپنی ریزیلینس شو کی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے تباہی بربادی سے بچایا جا سکے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی یہ چینج کی کہ پہلے DC کو اپلیکیشن موو کروائی کہ جناب NOC کی پرمیشن دی جائے، لیکن DC نے لنگر آن کیا۔ مختصر یہ کہ عمران خان صاحب نے جو جلسہ ہے وہ کال آف کر کے احتجاج کی کال دی، اور پھر آپ نے دیکھا یہ بہت بڑی ٹیکٹس ہے۔ میں اگر انقلاب کی بات کروں، سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی بات کروں، جلسے بھی بہت ضروری ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جب جبر کا موسم ہو اور آزادانہ طور پہ آپ جلسے تک نہ پہنچ سکے اور مختلف پابندیاں ہوں، تو پھر آپ کے پاس آخری رستہ اپنا جمہوری رستہ اختیار اور بنیادی حقوق جو کہ آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19 میں ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ احتجاج کریں اپنی گلیوں میں، اپنی سڑکوں پہ اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں۔ تو عمران خان صاحب نے بہت اچھی اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ کی، اور راولپنڈی ڈویژن کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ اور موبیلائز کر دیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فسطائیوں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور پورے پاکستان میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، خاص کر پنجاب میں، اسلام آباد میں یہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، اور پھر سب نے دیکھا تقریباً راولپنڈی کے جو 25 جو داخلی اور خارجی مقامات تھے ان کو بند کیا گیا، اسلام آباد کے تقریباً 9 مقامات سے بند کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو راولپنڈی آنے والے رستے ہیں جیلم سے، چکوال سے، اٹک سے، کوٹلی ستیاں سے، مری سے، ان کو بھی بند کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ عوام کس طرح نکلی۔ یہ وہ عوام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ عوام نکل رہی ہے جو تن من دھن کی قربانی سے گریز نہیں کرے گی، اور پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکلی۔
और किस तरह से संगलाक रस्तों से, पहाड़ियों से, नहरों से, स्ट्रीम नदी नालों से लोग क्रॉस करके आ रहे थे। सारी वीडियो वायरल है। मुख्तसर ये है कि इस हालात में अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, और वहाँ पर जैसे हालात है वहाँ पर आप उनको किस तरह रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम पंजाब आने नहीं देंगे। पहले इन्होंने धमकी दी पंजाब लाहौर में, लेकिन बहादुरी के साथ जिस तरह पहुँचे आपको मालूम है। और फिर जो ये गुमाश्ते हैं, जो कि मैं समझता हूँ फार्म 47 की पैदावार, चीफ मिनिस्टर फस्ताइयों की, हिटमैन की नुमाइंदा, और फिर उसके बाद उनकी चेलियाँ और चेले जिस तरह सारा दिन मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी पे बैठे नजर आए और धमकियाँ देते रहे, ये इंतहाई परेशान कुन है बीइंग पाकिस्तानी तमाम लोगों के लिए कि ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अब ये तो स्टेक होल्डर नहीं है, क्योंकि ये जमहूरी नुमाइंदे नहीं हैं, ये तो सारे हारे हुए हैं, तो ये नहीं हारेगी। अगर अवाम में ज़ाहिर परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, तो फिर उससे क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये पूरे पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान जो पहले ही तबाही की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें तेज़ी आएगी। मुख्तसर कि अली अमीन गंडापुर को रोका गया, उनके काफिले को रोका गया, और उनकी 4 मिनट की उन्होंने तकरीर की, उन्होंने रोक लिया अपने आप को, क्योंकि उनको मालूम था कि यह हालात तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और वह 4 मिनट की मैं ट्रांसक्रिप्ट में जो खदोखाल है वो मुख्तसर बयान कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे काफिले को किस तरह ज़्यादती करके और कानून के बरखिलाफ रोकने की कोशिश की, तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए और टीयर गैस इस्तेमाल किए गए, बुलेट इस्तेमाल किए गए, इवन फायरिंग की करवाई गई। तो ऐसे हालात थे जिसकी वजह से मैं रुक गया कि कहीं बर्बादी या तबाही की तरफ मामला ना जाए, जबकि कारकुन इंतहाई ज़्यादा मोबिलाइज थे और इमोशनल थे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अपना एल्डरली रोल प्ले करते हुए मैं समझता हूँ उन्होंने कारकुन को कन्विंस किया कि हमें मज़ीद नहीं बढ़ना चाहिए, हमें वापस आ जाना चाहिए। और फिर अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के साथ वापस आए, जबकि इनका राइट था एक वज़ीर आला को आप पंजाब में या जहाँ पर वो आना एहतजाज करना चाहते हैं वहाँ नहीं आने देना। यह गैर आइनी है, यह गैर कानूनी है, यह दहशत गर्दी इनकी तरफ से है, स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर लीडर्स हैं हमेशा पुरअमन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन फसाद का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और बर वक्त उन्हें रोका और चले गए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 4 मिनट का आवाम से ख़िताब किया है, मैं समझता हूँ इट इज़ अ हार्बिंजर टू ईच एंड एवरीबॉडी जो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। मेरी मुराद उनकी है जो ऑफिस बेयरर हैं, चाहे वो मिलिट्री क्रेसी से हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी से हैं, क्योंकि हुकूमत चाहे वो फेडरेशन पे है या प्रोविंशियल पंजाब की है, वो तो जाली है, इलेजिटिमेट है और नाजायज़ हुकूमत है। तो उनका कोई नहीं जाएगा, अवाम का जाएगा, पाकिस्तान का के नुकसान होगा। बहरहाल उनकी जो 4 मिनट की अवाम से तकरीर थी जो रात को इन्होंने की है, मैं समझता हूँ इंतहाई परेशान कुन है बैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए, जिसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम आएंगे, हमारा रास्ता ना रोका जाए, ये हमारा आइनी और कानूनी है। और KPK के जिरगों को, और आपको मालूम है जिरगा इंतहाई मजबूत है, उनको फैसला करें और फिर आप खड़े हो जाएं इनके जुल्म के ख़िलाफ़। फिर इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी तहरीक को ना रोका जाए, और आप इदारों को कहा कि आप अलहदा हो जाएं, आप सियासत से हट जाएं, ताकि अवाम को फैसला करने दे पाकिस्तान को चलाने के लिए। और फिर अगर अब नेक्स्ट टाइम तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया और हमारे ख़िलाफ़ ये गोलियां, ये ग्रेनेड और ये टीयर गैस इस्तेमाल ये, तो हम भी इसका टिट फॉर टैट यानी कि अदले का बदला दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक हैं। जमहूरी तरीके से मुल्क को चलने दें। ये तारीख़ में जितने भी आप देखें तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए जिसकी वजह से नुकसान स्टेट का होता है, अवाम का होता है। तो खुदारा होश का नाखून ले और इस चीज़ को, इससे अपने आप को रोकें। और अब अगर इस और सिनेरियो से देखा जाए कि तमाम जमहूरी स्ट्रगल रोक दिए गए हैं, काजी कल 63A का फैसला करके तरमीम का रास्ता खोलेगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए ये
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनको ख़रीदा जा सके, सेनेटर्स को ख़रीदा जा सके, और फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के बाद पाकिस्तान की जो आखिरी मैं समझता हूँ डिफेंस लाइन है जुडिशरी, जिसमें दम खम थोड़ा बहुत हर जगह मौजूद नज़र आ रहा था, उसको ग़ुलाम बनाना, उसको बांदी बनाना, उसको कैद करना है। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स को लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा, आपके बुनियादी हकूक अंडर आर्टिकल 199 जो प्रोटेक्ट करती है 5 किस्म के रेट्स वो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान को लिए प्रॉब्लम्स होंगी, और जब लीडरान की प्रॉब्लम होंगी तो जितने भी हमारे अवाम हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये रुकेगा नहीं। आपको अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि KPK में क्या हो रहा है, आपको अंदाज़ा है कि पंजाब में भी रिवाल्ट उठ रहा है। तो खुदारा अवाम को फैसला करने दे, अवामी नुमाइंदों को आने दें, वरना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ना आपके पास पैसा है, ना आपकी इकॉनमी है, ना आपकी खारजा पॉलिसी है, ना अमन व अमान है, ना आपका निज़ाम इंसाफ है, ना मुकन्नना है, ना इंतज़ामिया है। तो रियासत मैं समझता हूँ नाकाम होती चली जा रही है, और ये मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक है, डेलिब्रेट है, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे और उनके इशारे पर, ईमा पर ये सब कुछ हो रहा है। इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं, इनकी जायदाद बाहर है, इनके बच्चे बाहर हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्तलिफ लेयरिंग के ज़रिए कंपनी यानी कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हो चुके हैं आपको लूट कर। तो खुदारा अगर कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, चाहे वो मिलिट्रीक्रेसी से है, ब्यूरोक्रेसी से है, इस चीज़ को संभाले और इन लोगों से हमारी जान छुड़ाने में मदद दे, या फिर कम से कम पाकिस्तानियों को उनका जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनका जमहूरी राइट्स, एहतजाज का हक़, जुलूस का हक़ या जलसे का हक़ या इस तरह के डिफरेंट हक़ है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट ऑफ एसोसिएशन है, तो आप उसे करने दें। वरना मैं समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान होगा, कहीं देर ना हो जाए। काइंडली जितनी जल्दी इस मामले को डेलिब्रेट होके करके विजडम के साथ हल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना नुकसान पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान को होगा। इन चोरों, लुटेरे, डाकुओं और कातलों को, गद्दारों का नहीं होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक की इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।